मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते से ज़िले करगिल में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया, जिसके बाद ज़िंदगी के दूसरे शोबों के साथ तालीम का शोबा भी मुतासिर हुआ। अगरचे हुक्काम ने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ कम्युनिटी क्लास का सिलसिला भी शुरू किया, लेकिन जहां करगिल के स्कूलों में कम्युनिटी क्लासेस चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं ज़िले के दूर दराज गाँवों में इंटरनेट सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से तलबा मुतासिर रहे। अब जबकि यूटी इंतज़ामिया और हिल काउंसिल ने गुज़श्ता रोज़ 9वीं जमाअत से 12वीं जमाअत तक स्कूलों को बाज़ाब्ता खोलने का फ़ैसला किया, जिससे तलबा के साथ साथ असातिज़ा में भी उम्मीदें पैदा हुआ है। उम्मीद है कि हालात दिन ब दिन बेहतर होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ। فرق زیادہ چھندو سر چزری ولب آنلاین کلاس آن کوشن چٹینا سر لولب ٹھیک با چھوٹ پمندو پتا اے سر پچھم پوت پنا لب ٹھیک چھ با چھوت دی. سر میرا نام حکیمہ بانو. سر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ بہت ٹائم بعد ہمارا اسکول کھلا ہے اور آن لائن کلاس میں ہمیں ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں آتا جتنا ہمیں یہاں پہ سمجھ آتا ہے اچھے سے سب. یس سر, یہاں پہ بہت زیادہ افیکٹیو رہتا ہے کیونکہ ہماری کلاس میٹس سب ہوتے ہیں, ہم اس سے کوشچن وغیرہ ڈسکس کر سکتے ہیں. باقی آن لائن کلاس میں ہمیں اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتا سر یہ سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا اسکول کھلا ہے, بہت شکر گزار ہوں, بہت خوش ہو رہی ہے دل سے. سارے اسٹوڈنٹس بہت خوش ہو رہے ہیں, اپنے ٹیچر اسٹاف کا بہت شکر گزار ہے, اور ڈی سی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا بہت شکر گزار ہوں, اور ڈی سی صاحب سی سی صاحب کا بہت شکر گزار ہے. آج تک آن لائن کلاس چلتا تھا سر, بہت بچوں کے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا اور نیٹ ورک کی پرابلم بہت تھا, اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بہت کلاس مس ہوتا تھا, اور کمیونٹی کلاس میں بھی تھوڑا کبھی کمی ہوتا تھا. آج اسکول کھول کے بہت خوش ہو رہی ہے سر, اور اپنے ٹیچروں کا بہت شکر گزار ہے. تھینک یو سر. نہ صرف میرے کو بلکہ کہیں اسٹوڈنٹ کو نیٹ ورک پرابلم ہوتا تھا سر, کہیں کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا تھا. آج بہت دل کی امید گہرائیوں سے سارے خوش ہو رہے ہیں سر اسکول کھول کے. پہلے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بہت ہی مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال 2021 میں مارچ میں کچھ ٹائم کے لیے ہمارے اسکولس کھلا ہوا تھا. اس کے بعد انفارچونیٹلی جو ہے اپریل کے مہینے میں شاید لاک ڈاؤن ہوا. تب سے لے کے آج تک جو ہے تمام تعلیمی ادارے جو ہے بند تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹیوز اٹھایا جس میں آپ کا کمیونٹی کلاسز کو چلایا گیا, لیکن یہ گرلز ہائر سیکنڈری ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کمیونٹی کلاسز کا بھی ہم اہتمام نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں عام طور پر وہ رورل ایریاز سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کو ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم تھا, تو ہم کمیونٹی کلاس کو یہاں پہ نہیں چلا سکتے تھے. لیکن ہم نے جو ہے برابر طریقے سے پوری طرح سے آن لائن کلاسز, ہمارے جتنے بھی فیکلٹی ممبرس ہیں وہ بھی کسی بھی اسٹریم کا ہو, چاہے سائنس آرٹس یا کامرس ہو, برابر طریقے سے ہم نے جو ہے آن لائن کلاسز چلایا. آج تک ہمارے آن لائن کلاسز جو ہے جاری ہے. تو کل ہمارے گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اسکول کو ری اوپن کرنے کے لیے 9 to 12 تک کے لیے جو ایک آرڈر اجرا ہوا, اسی آرڈر کے حساب سے ہم نے کل واٹس ایپ کے ذریعے, ٹیلیفونک میسیج کے ذریعے سارے اسٹوڈنٹس کو اطلاع کیا کہ آج 2 تاریخ سے جو ہے برابر اسکول کھلے گا. تو اس میں ساتھ میں گورنمنٹ کا انسٹرکشن ہے برابر SOPs کو پالن کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے پرنسپل صاحب نے کل ایک میٹنگ بلایا تھا جس میں ہم نے پوری طرح سے SOP کو فالو کرنے کے لیے سارا سسٹم کو ہم نے اسکول میں اسٹیبلش کیا ہوا ہے, جس میں آپ کا سینیٹائزر ہو, ماسک اویلیبل رکھا گیا ہے, بچوں کا ہم جو ہے فیور چیک کرتے ہیں. اچھا, آپ کے ہینڈ واش کے لیے برابر ہم نے سسٹم کو بنایا گیا ہے. اور دوسری اور ایک اہم بات ہے یہ ہے کہ اس اسکول میں کافی رول ہے, 9 to 12 ہے,
तो लगभग 600 या 650 तक का रोल है। इसलिए हमने इस स्कूल में जो है 11-12 को अल्टरनेट क्लासेस चलाया जा रहा है। वो हमने मार्च में भी चलाया था, मार्च में भी वही एसओपी को हमने फॉलो करके चलाया था और आज भी हमने इसी एसओपी को फॉलो करके अल्टरनेट क्लासेस चलाना शुरू किया है। और 9 और 10 क्लास को हमारे यहाँ पे एकोमोडेशन की प्रॉब्लम की वजह से कोहेन हाई स्कूल में एकोमोडेट किया गया है, क्योंकि यहाँ इसलिए एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा एकेडमिक ब्लॉक पूरी तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रख के हमने अल्टरनेट क्लासेस किया हुआ है। एक दिन हम 11 साइंस आर्ट्स कॉमर्स को बुलाते हैं, दूसरे दिन हम 12 साइंस आर्ट्स कॉमर्स को बुलाते हैं। तो ये हमारा स्कूल का रोल है। तो और इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे बराबर एसओपी को फॉलो करके बच्चों का एकेडमिक को हम ज़ाया होने नहीं देंगे, क्योंकि जब आप ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं लेकिन इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। और आप बेहतर जानते हैं कि हमारे बहुत सारे करिकुलम एरियाज ऐसा है जहाँ पे नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, तो सारे बच्चे जो है क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे क्लास में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, ऑलमोस्ट 12 में मेरे पास 35 है, उसमें हार्डली 20-25 बच्चे ही अटेंड करते थे ऑनलाइन क्लासेस में। जब उनसे इंक्वायरी करते थे वो कहते थे सर हमारे पास जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो मैं एक बार फिर गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस स्टेप को उठाया और अब आपके आने वाले टाइम में एग्जाम्स का भी अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि सेशन हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम होता है, बाकी जगहों की तरह नहीं होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास लंबे समय के लिए एक विंटर वेकेशन होती है, तो बच्चों को एकेडमिक जो टाइम मिलता है बहुत कम ही मिलता है। इसलिए हमारी कोशिश यही होगी सारे स्टाफ का कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके एकेडमिक को, इनके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम हर तरह की हम कोशिश करेंगे। यही हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगा कि इनके सिलेबस को हमने विद इन द टाइम जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी फिलहाल हमारी कोशिश यही होगा, जितना हमने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है कंप्लीट किया है उनको हम फिलहाल रिपीट नहीं करेंगे। अगर बच्चों को जरूरत पड़ा, कहीं उनको कंफ्यूजन हो, डाउट क्लियरेंस हो, तो हम इंशाल्लाह उन क्लास को एक्स्ट्रा क्लासेस के जरिए जो है हम उनको वापस से रिवीजन कराएंगे, वरना हम जो है यहाँ से सीधा आगे बढ़ेंगे। जितना हमने जो है ऑनलाइन क्लासेस को में सिलेबस कंप्लीट किया, उससे आगे हम सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट पीरियड है, उसमें हमने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सर जो रोस्टर आपने बनाया है 11-12 का, तो हफ्ते में कितने दिन बच्चों को मतलब स्कूल आना है? जी इस रोस्टर के हिसाब से हमने 3 दिन आना है। 11 क्लास को हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होगा, 12 के बच्चों को 3 दिन क्लासेस होगा। तो जिस दौरान बच्चों को घरों में बैठना होगा, तो क्या उन दिनों में उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस क्या चलाएंगे? क्या ऐसा कोई अगर हमें जरूरत पड़ा क्लास ऑनलाइन चलाने की जरूरत है, हम ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आज भी हमने ऑनलाइन क्लासेस दिया है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहे कि जब बच्चा घर साथ फेस टू फेस टीचर के साथ इंटरेक्ट होगा, क्लास में बैठ के पढ़ाएंगे, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। क्योंकि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। हमारी कोशिश ये रहे, अगर हाँ इसके बावजूद भी अगर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बच्चे अगर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे तो हम ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। सर आज पहली बार स्कूल खोला गया है, तो कितने बच्चों ने अपीयर किया है यहाँ पे? कितने बच्चों ने हाजिरी दी है? जी फिलहाल आज लगभग मेरे हिसाब से 50% तक के अटेंडेंस होगा। अभी हमारा अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब मैंने क्लास ज्वाइन किया पहला, तो मुझे लगा कि 50% ही बच्चे जो है अटेंड किया हुआ है। तो शायद इसका रीज़न ये है कि जहाँ पे नेटवर्किंग प्रॉब्लम है वहाँ पे बच्चों को इन्फॉर्म नहीं हुआ। और आप बेहतर जानते हैं कि पिछले कुछ मौसम की खराबी की वजह से हमारे बहुत सारे देहात में फ्लड का प्रॉब्लम हुआ था, रोड कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम हुआ, उस वजह से शायद बच्चों का अटेंडेंस हो रहा है।